بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ سے ایک سبق آموز کہانی شیئر کروں گی۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانا کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانا اپنے ننھے منھے چوزوں کو کھلا رہی تھی۔ اپنی بہو کی طرف سے آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میرا بھی اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا تو یہاں مرغیوں کے پاس آ گئی۔ اچھا جا، اندر روٹی پڑی ہے، کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی چپل پیروں میں پہنتے ہوئے کراہتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز۔ اماں نے دکھ سے کھانے کو دیکھا اور نذیرہ میری دھی، تھوڑا سالن ہے تو لا دے، یہ موا پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نذیرہ نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، مگر جب ساس نے سالن کی فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تو نے تو مربے نام کیے ہیں نا اپنے پتر کے، جو فرمائش کرتی ہے۔ آج تیرا پتر کام سے آئے گا تو اس سے کہنا وہ تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے، پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے چلی آئی۔ اچھی بھلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے عنایت کے گھر، پتہ نہیں دل و دماغ میں کیا وبال اٹھا، بھاگی چلی آئی۔ نذیرہ اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں پر پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب دوپہر میں پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھی اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام طفیل اور چھوٹا عنایت، ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پر زمین لے کر زمینداری کرتے۔ ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کر دیں۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیر لیں، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگے۔ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے پہلے والا رزق بھی چھن جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تنگی کا رونا روتے رہتے اور سچ مچ تنگ دست ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے پر اپنی زمینیں واپس لے لی تھیں۔ اب دونوں دہاڑی دار تھے، گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ ماں جس نے تپتی دھوپ ٹھٹھرتی سردی میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، اپنے منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں ان دونوں کے لیے بوجھ تھی۔ رضیہ پانی تو پلا، بڑی گرمی ہے، آج تو سورج آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے رضیہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر عنایت کو دیا۔ آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکا ہے؟ گڈو بڑے دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں۔ ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی، رضیہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ آؤ بھائی طفیل، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ بڑے دنوں بعد تو نے چکر لگایا ہے۔ رضیہ لسی لا بھائی طفیل کے لیے۔ عنایت نے رضیہ کو آواز دی، میں تجھ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اماں کا، جو اسے میں ہی اپنے پاس رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، تنگ آ گیا ہوں میں اس کی روز روز کی فرمائشوں سے۔ کبھی یہ کھانا ہے، کبھی وہ نہیں کھانا، تیرے گھر میں تو روز گوشت پکتا ہے، خوش رہے گی تیرے گھر میں اماں۔ میں بھی بال بچے دار ہوں، تھوڑے خرچے نہیں ہیں۔ میری نذیرہ بیچاری رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، پر اماں اس کو ہر وقت کوسنے دیتی رہتی ہے۔ اب تو وہ میری اکلوتی دھی کے کھانے پر بھی نظر رکھنے لگی ہے۔ نذیرہ نے جو سکھایا تھا وہی زہر اگل رہا تھا۔ بھائی طفیل، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو خود ہی اماں کو زبردستی برادری کے سامنے اپنے گھر لے گیا تھا، میں نے تو نہیں نکالا تھا اس کو۔ اور تو جانتا ہے میرے پاس آج کل کوئی کام دھندا نہیں ہے، ویلا ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ رضیہ ہی لوگوں کی کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، بس تو کل میرے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ لے آ، میں اپنے گھر کا اور سکون برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے طفیل کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عنایت، اگر تم اماں کو یہاں لایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، تجھ سے برا تو کوئی پہلے بھی نہیں ہے، جا یہاں سے، میرا دماغ نہ خراب کر۔ کچھ بھی ہو، ہے تو وہ ہماری ماں نا۔ بھائی طفیل کا تو خون سفید ہو گیا ہے، میرا نہیں، میں کل جا کر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ وہ اپنا غصہ زور زور سے برتن مانجھ کر اتارنے لگی۔ طفیل، تو گیا تھا عنایت کے گھر؟
हाँ भाई गया था, तेरी बात कैसे टाल सकता था। कह आया हूँ आज आकर अम्मा को ले जाएगा, अगर ना आया तो। नजीरा को तशवीश हुई। अगर ना आया तो खुद जाकर छोड़ आऊंगा, तू फिक्र न कर, तू तो बस खुश रहा कर। हाँ तुफैल मैं तो अब बड़ी खुश हूँ, रब ने पूरे 7 साल बाद सुनी है हमारी। हाँ जानता हूँ तू बड़ी खुश है, इधर तो देख मेरी तरफ और हंस के तो दिखा। तुफैल तू भी ना। नजीरा बात अधूरी छोड़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये हुई ना बात, तुफैल मेरी ख्वाहिश है कि रब मुझे पुत्र दे इस बार। हाँ हाँ मेरा भी तो दिल चाहता है, बेहतर करेगा रब। अच्छा मैं तेरे लिए बाजार से कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आजा रोटी खा ले। नजीरा ने अम्मा को आवाज दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चरपाई से उठते हुए रोटी खाने के लिए आ गई। ले अम्मा रोटी खा ले, वही सूखी रोटी और साथ में अचार। आज शायद अम्मा का इधर आखिरी दिन था, इसी वजह से आज उसने मेहरबानी की और प्याज की बजाय अचार दे दिया। नजीरा दी बड़ी गर्मी है, अचार से मेरा सीना जलता है, एक प्याली दूध ला दो, मैं रोटी डुबोकर खा लूंगी। अम्मा ने नजाहत से कहा। अम्मा इसी वजह से मैं तुझसे तंग हूँ। सलाम भर जाई। अनायत की आवाज सुनकर नजीरा ने मुड़कर देखा तो वो फुर करके अम्मा की चारपाई पर आन बैठा। अम्मा के खाने की तरफ देखते हुए ठंडी सांस भरी। चलो उठो अम्मा, मैं तुझे लेने आया हूँ, गुड्डू तेरा इंतजार कर रहा है। ना मेरा पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, नजीरा दी को मेरी जरूरत है, एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आऊंगी। नजीरा बोली। अम्मा तुझे मेरे ऊपर सवार होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बगैर ही बहुत सुखी हूँ और तेरे बगैर मैं ज्यादा खुश रहूंगी। नजीरा ने तो अम्मा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। चल अम्मा जल्दी कर, तुझे घर छोड़कर मैंने काम पर भी जाना है। अनायत बेहद उकताया हुआ था। पुत्र ये तो पागल है, तो फैल आएगा तो देखना, वो मुझे तेरे साथ जाने नहीं देगा, वो कहेगा अम्मा मेरे पास रहे, हमें तेरी जरूरत है। अम्मा पागल नजीरा नहीं, तू पागल बन रही है। और भाई तो फैल खुद आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं तुझे अपने घर ले आऊं, वो अब और तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा की आंखों में ये सुनकर तो आंसू आ गए। जा अम्मा, क्या हमसे ही खिदमतें करवाती रहोगी, कुछ खिदमत अनायत से भी करवा लो। तंजिया मुस्कुराहट से नजीरा बोली। अम्मा खामोशी से उठी और अनायत के साथ चल पड़ी। रजिया अम्मा के लिए पानी ला। अनायत ने रजिया को आवाज दी। अच्छा अम्मा अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू यहाँ आराम से बैठ। अच्छा पुत्र रब रखा, जा खैर से। आ गई है अम्मा, बड़ी जल्दी थी तुझे यहाँ आने की, जैसे यहाँ तो तेरे इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां हो रही थी, बस एक तेरी ही कसर रह गई थी, ये पी ले लस्सी, वरना अनायत को तू मेरी शिकायतें लगाने लग जाएगी। सब पता है मुझे तेरी हरकतों का, कब्र में टांगे हैं और चुगलियां लगाने से तू बाज नहीं आती। रजिया की जुबान नजीरा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरे सोने रब, मुझसे कहाँ गलती हुई जो तू मुझे यूं आजमा रहा है, मैंने तो सारी जिंदगी तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया था। 2 मोटे मोटे आंसू बूढ़ी आंखों से निकलकर लरसते हुए प्याले में जा गिरे। हलक सूख कर कांटा बन चुका था, मगर प्यास खत्म हो चुकी थी। लस्सी का प्याला जमीन पर रखने की कोशिश में हाथों से मिट्टी का प्याला जमीन पर जा गिरा और अम्मा के दिल की तरह 2 टुकड़े हो गया। वाह अम्मा, आते ही नुकसान करने लगी है, कौन सा तेरे पुत्र की कमाई के ढेर लगे हैं जो तू प्याले तोड़ने लग गई है। अम्मा का दिल हर चीज से ओचाट हो चुका था। खामोशी से उठी और फटी चादर से आंसू साफ कर दी। घर की दहलीज पार करके आहिस्ता आहिस्ता चलते वो गांव की मस्जिद के पास बने थड़े पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। गए वक्तों को याद करते हुए दिल भर आया। दफतन 50 का नोट झोली में आ गिरा। अम्मा ने घबरा कर सर उठाया। भिखारन समझकर पैसे देने वाला दूर जा चुका था। मैं भिखारन नहीं हूँ, अपने पैसे ले लो, पैसे देने वाला दूर जा चुका था और अम्मा की आवाज न सुन सका। अम्मा ने नोट मुट्ठी में दबाया, घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो अनायत घर आ चुका था। अम्मा भी लाठी टेकती चरपाई तक पहुंची और गिरने के अंदाज में चरपाई पर ढह गई। अम्मा तू किधर गई थी, टांगों में तेरी जोर नहीं है और तू पूरे पिंड की सैर करती फिरती है, एमी कहीं गिर पड़ी तो स्यापा तेरे इलाज का भी पड़ जाएगा मुझे। अनायत ने बेदर्दी से अम्मा को जताया। रजिया रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लगी है। अनायत सेहन में लगे नलके से हाथ धोने चला गया। कहाँ से लाऊं रोटी, कुछ नहीं पकाया मैंने जो तेरे आगे पेश करूं। और सुन, दाल सब्जी पैसों से आती है जो तेरे पास तो कभी होते ही नहीं, ऊपर से खाने वाले बेशुमार। आखिरी फिक्रा अम्मा की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी अनायत के सामने खोल दी। अम्मा के हाथ में चूड़ा मुड़ा सा नोट देखा। अनायत को खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये तेरे पास कहाँ से आए पैसे, बस तू रख ले। रजिया ये पकड़ पैसे और जल्दी से सब्जी ला के पका, अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो यूं जता रहा है अम्मा ने दिए हैं पैसे। रजिया ने नकल उतारते हुए नोट अनायत के हाथ से खींचा और सब्जी लेने चल दी। ये सिलसिला चंद दिन तक यूं ही चलता रहा। अम्मा मस्जिद के पास बने थड़े पर सर
झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। इनसे कम से कम एक वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज इन्हीं बेटों ने अपनी माँ को भिखारन बना दिया था। बहन नजीरा कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हुआ क्यों शोर मचा रही हो? अंदर आ जाओ, मोहल्ले की औरत नजीरा को बताने लगी। तुम्हें पता है तुम्हारा देवर अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है और अम्मा झोली भर भर के पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रजिया को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और वो बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। बड़ा ही बेगैरत निकला है तेरा ये देवर, माँ को भिखारन बना दिया इस नामुराद ने। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ मेरी देवरानी रजिया का मुंह बंद क्यों है? वो तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, तो अकेले अकेले कमाई खा रही है अम्मा की। नजीरा पुरसोच अंदाज में बुड़बड़ाई। नजीरा ने अपने शोहर तुफैल से बोला, तुफैल तुझे पता है अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है? मुझे पड़ोस वाली बता रही थी, अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रजिया को देती है। देखा तूने तुफैल, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो उसके नखरे ही नहीं खत्म होते थे और इधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ तुफैल, मैं रजिया को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी, हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तो ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ, अम्मा से कहना हम बड़े शर्मिंदा हैं, तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। क्या कभी कहती है छोड़ा, कभी कहती है ले आ। तूने तो मुझे लट्टू समझ रखा है, जिधर दिल करता है घुमाने लग जाती है। जा कर दिमाग कहीं की, दफा हो इधर से। क्या समझ रखा है मुझे? देख तो फैल, ठंडे दिमाग से सोच, घर में अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। आज पहली मर्तबा नजीरा तो फैल की झिड़कियों पर भड़कने की बजाय आराम से समझाने लगी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, पानी पिला। बेटा बीवी को समझाने की बजाय खुद भी माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा कि अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो ही जाएगी। बेगैरत बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी, जिसे माल तो नजर आ रहा था मगर माँ की इज्जत नफ्स और खुददारी जाने का कोई दुख नहीं था। अम्मा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, नजीरा तुझे बड़ा याद कर रही है। तुफैल ने अपने छोटे भाई अनायत के घर दाखिल होते हुए बुलंद आवाज में अपना हुक्मनामा जारी किया। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। अनायत ने दखलंदाजी की। अनायत भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा उठ मेरे साथ, चल मेरा वक्त बर्बाद न कर। तुफैल ने तकरीबन घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। भाग तुफैल, अम्मा तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बस मैंने कह दिया अम्मा यही मेरे घर में रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों नहीं भेज रहा अम्मा को मेरे साथ। और मुझे सब पता है, अम्मा की कमाइयाँ खा रहा है तू क्या समझता है मुझे कभी नहीं पता चलेगा? अम्मा की कमाई तू अकेला खाता रहेगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? इस भूल में न रहना। तुफैल भी जानवरों की तरह धाड़ कर बोल रहा था। मेरा भी पूरा हक है अम्मा की कमाई पर। माँ तो बेबसी से दोनों बेटों की तरफ देखती रही, जो माँ के लिए नहीं बल्कि माँ की गोद में भीख की सूरत में गिरे चंद सिक्कों के लिए लड़ रहे थे। एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां थे। इस दिल की वीरान जमीन में जो थोड़ी बहुत नमी बाकी थी, दो आंसुओं की शक्ल में आंखों से फिसली, झुर्रियों ज़दा गालों पर फैल गई और अम्मा ने खामोशी से आंखें मूंद ली। अचानक अनायत की नजर माँ के बेजान वजूद पर पड़ी, जो एक जानब लुढ़क चुका था। अनायत की निगाहों के ताक़ुब में तुफैल ने देखा तो वो साकत खड़ा रह गया। अम्मा अम्मा, अनायत ने बेख्तियार माँ को झंझोड़ा, मगर बूढ़ा वजूद दुनिया की झमेलों से आजाद हो चुका था। बड़े बेटे तुफैल के कदम गोया जमीन में गड़ चुके थे, क्योंकि इनकी माँ मर चुकी थी। ये क्या कर दिया हमने? बीवियों की बातों में आकर हमने अपनी जन्नत गंवा दी, रोल दिया हमने अपनी जन्नत को मिट्टी में। तुफैल अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े वही जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अनायत दीवाना वार माँ के पांव चूम रहा था, मगर बदबख्ती इनका मुकद्दर बन चुकी थी, क्योंकि माफ कर देने वाली अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ इनके लिए बेमोल वहशत थी। अब इन्हें सारी उम्र पछताओं की आग में जलना था और यकीनन उनके साथ भी वही सलूक होने वाला था जो उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था। मकाफाते अमल शुरू हो चुका था। माँ तो बहुत अनमोल हस्ती है, खुशकिस्मत है वो औलाद जो माँ की कदर करती है। ये तो वो अनमोल वहशत है जो किस्मत वालों के हिस्से में आती है, मगर औलाद को भी वालिदैन की कदर उसी वक्त आती है जब या तो वो इस दुनिया में नहीं रहते या वो खुद वालिदैन के रुतबे पर फाइज होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।